عوام پر مہنگائی کا مزید بوجھ، حکومت نے پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتوں میں اضافہ کر دیا۔ پیٹرول 5 روپے 44 پیسے مہنگا 316 روپے 15 پیسے فی لیٹر ہو گیا۔ ڈیزل کی قیمت میں 31 روپے 5 پیسے کا بڑا اضافہ، نئی قیمت 353 روپے 35 پیسے مقرر۔ وزارت پیٹرولیم نے نئی قیمتوں کا نوٹیفکیشن جاری کر دیا۔ کابینہ نے اور وزیر اعظم صاحب نے جو فیصلہ کیا ہے وہ یہ ہے کہ ریاست کو کسی خطرے سے لاحق کرے بغیر شفافیت اس نظام میں لانے کے لیے اوگرا کو اب سے یہ ذمہ داری دی جائے گی کہ روزانہ کی بنا کے اوپر وہ قیمتوں کا بین الاقوامی منڈی کے لحاظ سے فیصلہ کرے۔ وفاقی حکومت کا روزانہ کی بنیاد پر پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتوں کے تعین کا فیصلہ، اوگرا روزانہ کی قیمتوں کا تعین کر کے ویب سائٹ پر لگایا کرے گا۔ قیمتوں میں کمی کا فائدہ عوام کو فوری دیا جائے گا۔ وفاقی وزیر پیٹرولیم علی پرویز ملک کی وفاقی وزیر اطلاعات عطا تارڑ کے ہمراہ نیوز کانفرنس، کہا خطے میں جنگ بڑھتی نظر آ رہی ہے، تیل کی منڈیوں میں بحران بڑھتا نظر آ رہا ہے۔ عالمی منڈی میں ڈیزل کی قیمت 140 اور پیٹرول کی قیمت $100 کے قریب آ چکی ہے۔ پیٹرولیم سیکٹر میں ناجائز منافع خوری اور مصنوعی قلت پر سخت کارروائی ہوگی۔ یہ آسان نہیں ہے، اور تیل کی قیمتیں جب بڑھتی ہیں تو اس کا ایک امپیکٹ آتا ہے، اور اس کا بڑی درد مندی کے ساتھ حکومت کو مکمل احساس ہے۔ مگر سبسڈی کا بھی جو انتظام کیا گیا، اس کے بعد ٹارگیٹڈ سبسڈی بھی جو گڈز ٹرانسپورٹ پہ، پبلک ٹرانسپورٹ پہ، ایگریکلچر پہ، موٹر سائیکل یوزرز، ان کے اوپر وہ تمام لوگوں کو وہ اس میں شامل کیا گیا جو ڈیزرو کرتے تھے۔ اب دیکھیے، روزانہ کی بنیادوں پہ یہ جو قیمتوں کے تعین سے یہ ہوگا کہ ایک جو گلا کیا جاتا تھا کہ جی فوری ٹرانسفر نہیں ہوتی، وہ روزانہ کی بنیادوں پہ اتار چڑھاؤ جتنا ہوگا وہ ٹرانسفر ہو جائے گا۔ وفاقی وزیر اطلاعات کا عوام کو الیکٹرک بائکس اور الیکٹرک کار کی طرف آنے کا مشورہ، کہا تیل کی قیمتوں کا عالمی منڈی میں بڑھنے کا تعلق خطے میں کشیدگی بڑھنے سے ہے۔ عالمی منڈی میں تیل کی قیمتیں بڑھنے کا بوجھ پاکستان پر بھی آتا ہے۔ جب دنیا میں تیل نہیں مل رہا تھا تو پاکستان میں تیل کا بندوبست تھا۔ وزیر اعظم نے کہا کسی کو اضافی منافع نہیں کمانے دیا جائے گا، جس نے اضافی منافع کمایا اسے واپس لیا گیا۔ گڈز، پبلک ٹرانسپورٹ، موٹر سائیکل سواروں اور زراعت کے لیے سبسڈی دی گئی، لیوی میں کوئی اضافہ نہیں ہوا۔ اگر ریاست پاکستان اسٹریٹ آف ہارموز کھلوا سکتے ہیں تو ہمارا درخواست ہے حکومت پاکستان سے، ریاست پاکستان سے، میرا کشمیر بند پڑا ہوا ہے، کھولے۔ جب تک یہ ٹروتھ اینڈ ریکنسیلیشن کمیشن اپنا کام مکمل نہ کرے، اور اگر یہ ٹروتھ اینڈ ریکنسیلیشن کمیشن بن جائے تو میرا درخواست ہوگا وہ احتجاج کرنے والوں سے کہ جب تک یہ کمیشن اپنا کام مکمل نہ کرے تب تک آپ بھی اپنا احتجاج ختم کریں۔ حکومت آبرائے ہرمز کھلوا سکتی ہے تو کشمیر کو بھی کھلوائے، کشمیر کا فیصلہ کشمیری عوام ہی کریں گے، وزارت آزاد کشمیر ہونی ہی نہیں چاہیے۔ چیئرمین پیپلز پارٹی بلاول بھٹو زرداری کا آزاد کشمیر ڈڈیال میں جلسے سے خطاب، کشمیر کے معاملے پر ٹروتھ اینڈ ریکنسیلیشن کمیشن بنانے کا مطالبہ، کہا آزاد کشمیر گلگت بلتستان کے عوام آج بھی اپنے حقوق ملنے کا انتظار کر رہے ہیں۔ حکومتی اقدامات سے احتجاج کرنے والے نہیں، تمام لوگ متاثر ہو رہے ہیں۔ احتجاج کرنے والے اور ریاست چلانے والے عام شہریوں کی مشکلات کا خیال رکھیں۔ جب سیاسی بحران پیدا ہوتا ہے تو غیر سیاسی قوتیں فائدہ اٹھاتی ہیں۔ مذاکرات اور بات چیت سے ہی ہر مسئلے کا حل نکالا جا سکتا ہے۔ ایسا احتجاج جس میں راشن، ادویات، فیول کو پہنچنے سے روکا جائے غلط ہے۔ جن لوگوں نے دہشت گردی اور چوری کی ان کو پکڑا جائے۔ بلاول بھٹو نے کہا وفاقی حکومت ہی گلگت بلتستان میں حکومت بناتی ہے۔ پیپلز پارٹی نے گلگت بلتستان میں یہ روایت ختم کر دی۔ 27 جولائی کو آزاد کشمیر کی عوام بھی یہ روایت توڑیں گے۔ Islamabad Memorandum of Understanding was signed by United States, Iran and Pakistan as mediator. In that, I must also mention here that the untiring efforts of Field Marshal Sayyid Asim Munir in this process of mediation will always be remembered in the annals of history. And equally important contribution of Deputy Prime Minister Ishaq Dar talking to his counterparts all over the world.
ईरान और अमेरिका के दरमियान इस्लामाबाद मुफाहमती याददाश्त में पाकिस्तान ने सालिस का किरदार अदा किया। मिसालती अमल में फील्ड मार्शल सैयद आसम मुनीर की अनथक कोशिशें तारीख में हमेशा याद रखी जाएंगी। इज्तिमाई और मरबूत कोशिशें ही अमन के क़याम का बाइस बनेंगी। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ का फार्मास्यूटिकल, हेल्थ केयर और बायोटेक्नोलॉजी से मुतल्लिक B2B सरमायाकारी कॉन्फ्रेंस में खिताब। कहा, पाकिस्तान मियारी तिब्बी मसनूआत बरामद करने के लिए सेंटर ऑफ एक्सीलेंस बनकर उभरेगा। हालिया सरमायाकारी CPEC-2 के फरोग की जाने एक अहम कदम है। CPEC फेज 1 के तहत पाकिस्तान में $30 अरब की सरमायाकारी की गई। सेहत के शोबे में $44 करोड़ से जायद मालियत के मुआहदे खुशाइंद हैं। कीर स्टारमर आउट, एंडी ब्रनहम इन। बरतानवी लेबर पार्टी ने एंडी ब्रनहम को नया सरबराह चुन लिया। 20 जुलाई को वज़ारत उज़्मा का ओहदा संभालेंगे। एंडी ब्रनहम ने कहा, कीर स्टारमर की क़यादत में हमने बदतरीन शिकस्त से शानदार फतह तक का सफर किया। सर कीर स्टारमर की पार्टी मुल्क के लिए शानदार खिदमत पर शुक्रगुजार है। लेबर पार्टी को मजीद बुलंदियों पर ले जाने के लिए तैयार हूँ। सियासी तनाव को कम करने की कोशिश करूंगा। सरबराह लेबर पार्टी ने कहा, बिजनेस फ्रेंडली वज़ीर-ए-आज़म बनकर दिखाऊंगा। बरतानिया को नई राह पर लेकर जाएंगे। अमेरिकी फौज की मुसलसल छठी रात ईरान पर हमलों की कार्रवाई मुकम्मल, सिर्फ फौजी और लॉजिस्टिक तंसीबात को निशाना बनाने का दावा। अमेरिकी सेंट्रल कमांड एक्स पर बयान जारी करते हुए कहा है कि ईरान की फजाई दिफाई निजाम और लॉजिस्टिक तंसीबात को भी निशाना बनाया गया। दूसरी जानिब ईरानी मीडिया के मुताबिक अमेरिकी फौज ने शहरी इंफ्रास्ट्रक्चर को निशाना बनाया। अमेरिकी फजाइया ने ईरान शहर एयरपोर्ट, बंदर अब्बास, बंदर खमीर, अहवाज और बू शहर में हमले किए और 3 पुल तबाह कर दिए। बंदर अब्बास में रिहायशी इमारत, कम्युनिकेशन टावर, रेलवे स्टेशन पर भी हमला किया गया, जबकि बू शहर में बहरी अड्डों को भी निशाना बनाया गया। ईरानी मीडिया के मुताबिक अमेरिकी हमलों में 7 अफराद जाँ बहक और 9 जख्मी हुए। अमेरिका ईरान में बड़ी कामयाबी हासिल कर रहा है और आप बहुत जल्द इसका नतीजा देखेंगे। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि मैंने अमेरिकी फौज को दोबारा मजबूत बनाया और इसे दुनिया की सबसे ताकतवर फौज में तब्दील कर दिया। अमेरिकी सदर ने कौम से अपने खिताब में कहा कि हम वेनेजुएला में भी कामयाब हुए, जो अब हमारे साथ मिलकर लाखों बैरल तेल पैदा कर रहा है। अमेरिका अपने मफादात और इत्तेहादियों के तहफ्फुज़ के लिए हर जरूरी इक़दाम जारी रखेगा। अमेरिकी सदर ने चीन पर इल्जाम आयद करते हुए कहा है कि चीनी हुकूमत चाहती है कि मैं इलेक्शन हार जाऊं। चीन इलेक्शन डेटा हैक करने की कोशिश कर रहा है। नेशनल इंटेलिजेंस के डायरेक्टर और FBI को चीन से मुतालिक तहकीकात का हुक्म दिया है। अमेरिकी फजाई कार्रवाइयों के बाद ईरान ने जवाबी कार्रवाई करते हुए बहरीन और कवैत में अमेरिकी फौजी अहदाफ को ड्रोन हमलों से निशाना बनाया। बहरीन के सखीर फौजी अड्डे पर मौजूदा अमेरिकी हेलीकॉप्टरों और जासूस तैयारों को ड्रोन के जरिए निशाना बनाया गया। उधर रूसी मीडिया के मुताबिक कवैत में भी ईरानी ड्रोन हमलों के दौरान अमेरिकी मिसाइल दिफाई निजाम की एक बैटरी को निशाना बनाया गया, जिसके बाद इलाके में धुएं के बादल उड़ते देखे गए। कतर पर मिसाइल हमले को नाकाम बना दिया गया। कतर की वजारत दिफा ने एक्स पर जारी बयान में कहा है कि मुसल्लह अफवाज ने कतर को निशाना बनाने वाले मिसाइल हमले को रोक दिया। दूसरी जानिब कवैती फौज ने अपने बयान में कहा कि मुल्क का फिजाई दिफाई निजाम दुश्मन की जानिब से दागे गए मिसाइलों और ड्रोन को नाकाम बनाने के लिए मुतहर्रिक है और सूरत हाल पर मुसलसल नजर रखी जा रही है। कवैती वजारत दिफा के मुताबिक हमलों के दौरान मुल्क की मुतादिद अहम तंसीबात को निशाना बनाया गया, जिसके नतीजे में माली नुकसान हुआ। ताहम जानी नुकसान के बारे में फौरी तौर पर कोई तफसीलात जारी नहीं की गई। अब नए हुर्मुज़ की सूरत हाल 40 रोजा जंग से पहले वाली हालत में कभी वापस नहीं आएगी। ईरानी मुसल्लह अफवाज के तर्जुमा इब्राहिम जुल्फ़िकारी ने कहा कि अमेरिका अब नए हुर्मुज़ पर ईरान की खुद मुख्तारी से खौफजदा है। अब नए हुर्मुज़ में सिक्योरिटी को गैर मुस्तहकम करने का काम अमेरिका कर रहा है। इन्होंने कहा कि ईरान ने खलीजी ममालिक से दरख्वास्त की है कि वो अमेरिका को अपनी सरजमीन ईरान के खिलाफ हमलों के लिए इस्तेमाल करने की इजाजत न दे। अगर खित्ते के ममालिक ईरान के साथ ताउन करें और अमेरिका के साथ ताउन से गुरेज करें तो इज्तिमाई सलामती हासिल की जा सकती है। अमेरिकी नायब सदर JD वैंस ने व्हाइट हाउस के सीनियर मशीरों जैरेड कुशनर और स्टीव विटकॉफ पर ईरान से मुतालिक मुज़ाकरात के दौरान माली फायदा उठाने के इल्जामात को मुकम्मल तौर पर बेबुनियाद करार दे दिया। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर जारी अपने बयान में JD वैंस ने कहा कि ऐसी खबरें और दावे हकीकत पर मबनी नहीं है। इन्होंने कहा कि जैरेड कुशनर और स्टीव विटकॉफ सदर डोनाल्ड ट्रंप की टीम के काबिल एतमाद अरकान हैं और इन पर अंदरूनी मालूमात से माली फायदा उठाने का इल्जाम आयद करना बिल्कुल मजहब का खिस है।
बन्नू और गिरदोनवा में सिक्योरिटी फोर्सेस के इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशंस में गुज़िश्ता 24 घंटों में 24 ख्वारिज हलाक हो गए। ISPR के मुताबिक हलाक ख्वारिज का ताल्लुक भारतीय प्रॉक्सी फितनल ख्वारिज से था जो मुतादिद दहशतगर्द कार्रवाइयों में मुलव्विस थे। ख्वारिज से भारी मिकदार में असलहा और गोला बारूद बरामद कर लिया गया। तर्जुमान पाक फौज के मुताबिक दहशतगर्दी के तमाम जिम्मेदारों को इंसाफ के कटहरे में लाया जाएगा। बैरूनी सरपरस्ती में होने वाली दहशतगर्दी का खात्मा किया जाएगा। ISPR के मुताबिक भारतीय सरपरस्ती में सरगर्म दहशतगर्दों के खिलाफ कार्रवाइयां मजीद तेज, दहशतगर्दी के नासूर के मुकम्मल खात्मे तक ऑपरेशन बिला तातुर जारी रहेंगे। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ से उड़ान पाकिस्तान समर स्कॉलर्स प्रोग्राम के स्कॉलर्स की मुलाकात। दुनिया की मुमताज जामियात में जेर तालीम पाकिस्तानी तलबा ने पाकिस्तान में इंटर्नशिप के फैसले का खैर मकदम किया। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने कहा, कौमी तरक्की में नौजवानों का कलीदी किरदार है। पाकिस्तानी तलबा और तलबा दुनिया में आज मुल्क का नाम रोशन कर रहे हैं। वज़ीर-ए-आज़म ने स्कॉलर्स को हुकूमत के इस्लाहाती एजेंडे पर ब्रीफिंग दी, सवालात के जवाब भी दिए। वज़ीर-ए-आज़म ने कहा, फील्ड मार्शल की क़यादत और कौम की भरपूर हमायत से पाकिस्तान ने भारत को शिकस्त दी। अमेरिका ईरान जारी जंग रुकवाने में पाकिस्तान का किरदार सफारती तारीख का नुमायां बाब है। शहबाज शरीफ ने कहा, गुज़िश्ता माली साल के दौरान FBR ने 800 अरब से ज़ायद इजाफी महसूलात जमा की। मुआशी इस्लाहात का मकसद मजबूत, खुद कफील, बरामदात पर मबनी मुईशत की बुनियाद रखना है। वफाकी हुकूमत सेहत के शोबे की बेहतरी के लिए कोशां। पाकिस्तान और चीन के निजी शोबे के दरमियान फार्मास्यूटिकल शोबे में मुआहदे। तकरीब में वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ, चीनी सफीर जियांग जीडोंग, वफाकी वज़ीर सेहत मुस्तफ़ा कमाल, हारून अख्तर खान की शिरकत। तकरीब में $44 करोड़ से जायद मालियत के 9 मुआहदे। मुकामी सतह पर वैक्सीन की तैयारी, बायोटेक्नोलॉजी में ताउन का मुआहदा हुआ। अद्वियात की तैयारी, टेक्नोलॉजी का तबादला, हेपेटाइटिस से बचाव से मुतल्लिक मुआहदे पर दस्तखत किए गए। हिफाजती टीकों के कौमी प्रोग्राम के हवाले से ताउन भी मुआहदों में शामिल। अपने खिताब में चीनी सफीर ने कहा, वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने बिजनेस टू बिजनेस ताउन का विजन पेश किया। B2B मॉडल को अमली ताउन के लिए एक राह के तौर पर मुतारिफ कराया। वज़ीर-ए-आज़म के मुआवन खुसूसी हारून अख्तर खान ने कहा, गुज़िश्ता दौर के मॉडल्स पर चलते हुए पायदार खुशहाली मुमकिन नहीं। वज़ीर-ए-आज़म ने आलमी सतह पर मुसाबकत के लिए खुद को तैयार करने की तरगीब दी। हालिया दौरा चीन ने इक़्तिसादी ताउन के एक नए बाब का आगाज किया। वज़ीर आला मरियम नवाज शरीफ की हिदायत पर मुजफ्फरगढ़ में सांझी सब्जी प्रोजेक्ट का आगाज हो गया। इस मुनफरिद मंसूबे के तहत सरकारी बिल्डिंग्स और दही अराजी के 140 प्लाट्स पर मौसमी सब्जियां काश्त की जा रही हैं, जिससे मुकामी आबादी को मुफ्त सब्जियां मिलना शुरू हो गई हैं। क्रिश्चियन बरादरी के गांव से शुरू होने वाले इस फलाही इक़दाम में शहरी और रज़ाकार भी बढ़ चढ़ कर हिस्सा ले रहे हैं। वज़ीर आला पंजाब ने इस मंसूबे को काबिल तकलीद करार देते हुए सूबे के तमाम डिप्टी कमिश्नर्स को इसे फौरी शुरू करने के अहकामात जारी किए। मरियम नवाज शरीफ से DC मुजफ्फरगढ़ मोहम्मद उस्मान ताहिर जप्पा की मुलाकात। वज़ीर आला ने डिप्टी कमिश्नर मुजफ्फरगढ़ के अवामी फलाही इक़दाम को सराहते हुए इन्हें चीफ मिनिस्टर मेरिट बैज और नकद इनाम से भी नवाजा। अपनी छत महफूज छत के नाम से है, जिसमें आपको 5 लाख तक का सूद फ्री 100% इंटरेस्ट फ्री कर्जा दिया जा रहा है, जिसमें आप अपने छत को महफूज करना चाहते हैं, छत को मजबूत करना चाहते हैं, तो वो आप उस पैसे से वो कर सकते हैं। और वो निहायत आसान किस्तों पे, पहले 3 महीने आपको अपनी छत अपना घर की तरह कुछ नहीं देना, 3 महीने का ग्रेस पीरियड है, और उसके बाद आपको हर महीने तकरीबन 4,700 रुपये की एक किस्त है, और ये 5 लाख आपको पूरा 9 साल में अदा कर। हुकूमत पंजाब ने अपनी छत महफूज छत प्रोग्राम के तहत शहरियों को अपना घर तामीर करने के लिए 5 लाख रुपए तक बिला सूद कर्ज फराहम करने का ऐलान कर दिया। कर्ज 9 साल की मुद्दत के लिए दिया जा रहा है। कर्ज लेने वाले को पहले 3 माह एक साथ अदा नहीं करना होगी, बाद अज़ां हर माह 4,700 रुपए की किस्त अदा करना होगी। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज शरीफ ने प्रोग्राम की इफ्तिताही तकरीब से खिताब करते हुए कहा कि हर इंसान का ख्वाब होता है कि उसका अपना घर हो, क्योंकि अपनी छत इंसान को तहफ़्फ़ुज़, सुकून और इत्मीनान का एहसास दिलाती है। वज़ीर आला पंजाब ने इस अज़्म का इजहार भी किया कि पंजाब हुकूमत अवामी फलाह व बहबूद के मंसूबों को तरजीह देते हुए ऐसे इक़दाम जारी रखेगी जो आम शहरी की जिंदगी में हकीकी बेहतरी लाए। कश्मीर का इलेक्शन है और कश्मीरियों से बेहतर ये कोई नहीं जानता कि कायद मोहम्मद नवाज शरीफ का जो रिश्ता मोहब्बत का, दिल का और खून का रिश्ता कश्मीरियों के साथ जुड़ा हुआ है, उसमें कश्मीर की तरक्की में मोहम्मद नवाज शरीफ की अनमिनट निशानियां मौजूद हैं। कश्मीर
तमाम पाकिस्तानियों की दिल की धड़कन है। सदर मुस्लिम लीग नून नवाज शरीफ ने हमेशा कश्मीर की तरक्की के लिए मंसूबे, बजट और पॉलिसियां दी। सीनियर वजीर पंजाब मरियम औरंगजेब का रावलपिंडी में जलसे से खिताब, कहा पाकिस्तान और कश्मीर की तरक्की एक दूसरे से जुड़ी हुई है। मुस्लिम लीग नून के हर दौरे हुकूमत में तरक्की का अमल तेज हुआ। कश्मीरियों और नवाज शरीफ का मोहब्बत, दिल और खून का रिश्ता है। आजाद कश्मीर में तरक्की के मंसूबे नवाज शरीफ की हुकूमत की निशानियां हैं। मुल्क भर में अस्पताल, स्कूल, सड़कें मुस्लिम लीग नून के कारनामे हैं। जब हम पिंडी से आजाद कश्मीर की हदूद में दाखिल हुए तो तकरीबन किलोमीटर या 1.25 किलोमीटर होगा, 1.5 किलोमीटर अंदर आजाद कश्मीर की हदूद में यूनियन काउंसिल की टहनी है। वहाँ पे मेरे ऊपर कातलाना हमला हुआ। हमारा जो साथी था सरदार आसिफ चौधरी से, वो मुझे कवर करते हुए उसने अपनी जो जान है वो अल्लाह के हवाले की, वो शहीद हो गया। सदर इस्तेकाम पाकिस्तान पार्टी आजाद कश्मीर सरदार तनवीर खान के काफिले पर कातलाना हमला। यूनियन काउंसिल टाई ढलकोट में सिक्योरिटी एहलकार सरदार मोहम्मद आसिफ जान बहक, मुस्तद जख्मी। अपने वीडियो बयान में साबिक वजीर आजम आजाद कश्मीर ने बताया, हल्का LA 22.5 में अपने घर जा रहे थे। आजाद कश्मीर की हदूद में दाखिल हुआ तो मुझ पर कातलाना हमला किया गया, जिसमें एक सिक्योरिटी एहलकार जान बहक और मुतअद्दिद साथी जख्मी हुए। सरदार तनवीर अलियास ने कहा, कुछ अनासर रियासत में आटे और अशिया खुरनोश की किल्लत का शोर मचाते हैं, वही खुद रास्ते बंद करके रियासती निजाम और आम आदमी की जिंदगी को यरगमाल बनाए हुए हैं। वक्त आ गया है दहशतगर्दी और लाकानूनियत का रास्ता अख्तियार करने वालों से रियासत आहनी हाथों से निपटे। गरीब और नादार शहरियों को मुफ्त कानूनी मुआवनत की फराहमी। लाहौर पुलिस और लाहौर बार के दरमियान मुआहिदा हो गया। DIG ऑपरेशन फैसल कामरान और सदर लाहौर बार इरफान हयात बाजवा ने दस्तखत किए। DIG ऑपरेशन फैसल कामरान ने कहा, इनकी तैनाती के दौरान 51,000 से ज्यादा शहरियों की शिकायत बराह रास्त सुनी गई। माली मुश्किलात किसी शहरी को इंसाफ से महरूम नहीं रख सकती। मुस्तहिक शहरी अब सिविल मुकदमात में मुफ्त कानूनी मुशावरत और कानूनी नुमाइंदगी हासिल कर सकेंगे। सिविल नौयत के मुकदमात मुस्तहिक साइलिन की रजामंदी से लाहौर बार के वकला के पैनल को भिजवाए जाएंगे। क्रिकेट का बड़ा नाम दुनिया से रुखसत। वेस्ट इंडीज के लेजेंडरी ऑलराउंडर सर गैरी सोबर्स 99 बरस की उम्र में इंतकाल कर गए। सर गैरी सोबर्स ने वेस्ट इंडीज की जानिब से 93 टेस्ट मैचेस खेले। उनके कैरियर में 8,000 से ज्यादा रन और 235 विकेटें शामिल हैं। उन्होंने फर्स्ट क्लास कैरियर में 383 मैचेस खेले, जिसमें 28,000 से ज्यादा रन बनाए और 1,000 से ज्यादा विकेटें हासिल की। सर गैरी सोबर्स को 6 गेंदों पर 6 छक्के मारने वाले पहले क्रिकेटर का भी एजाज हासिल है। कौमी टीम के ऑलराउंडर मोहम्मद नवाज की एंटी डोपिंग कोड की खिलाफ वर्जी, गलती का एतराफ कर लिया। रिहैब प्रोग्राम पर रजामंदी पर इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल आरजी मुअत्तली खत्म। मोहम्मद नवाज का डोप टेस्ट 7 फरवरी 2026 को कोलंबो में नीदरलैंड के खिलाफ T20 वर्ल्ड कप के मैच के बाद दिया गया था। इनके नमूने में ममनुआ चीज की मौजूदगी पाई गई, जिसके बाद 1 मई 2026 तक मोहम्मद नवाज की तमाम मैच कारकर्दगी और रिकॉर्ड्स भी डिस्क्वालीफाइड करार दे दिए गए। ICC के रिहैब प्रोग्राम कामयाबी से मुकम्मल करने पर इनकी नाअहली की मुद्दत 3 माह से कम होकर 1 माह तस्वर की जाएगी।